Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we are going to discuss current affair part 11, and these current affairs are important for Punjab exams, Punjab government exams like Naib Tahsildar, Excise Inspector, Cooperative Bank, Patwari, Election, Kanugo, Sub Inspector Punjab Police and many more exam. Okay, तो ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले हमने जो 10 वीडियोस बनाई हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो काइंडली गो थ्रू ऑल वीडियोस। Okay, these are very important for your exams. So let's start with the first current affair. The first is Justice Arun Kumar Mishra. He became the chairperson of National Human Rights Commission. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पहले जो एक्टिंग चेयरपर्सन थे, ठीक है, अब उनको उनका परमानेंट चेयरपर्सन मिल चुका है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, वो है ए के मिश्रा। सो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अरुण कुमार मिश्रा। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पहले चेयरमैन सिर्फ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकता था, बट बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए। अब एक्स सुप्रीम कोर्ट का जज भी इसका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन हो सकता है। So former Supreme Court Judge Arun Kumar Mishra will be the new chairperson of National Human Rights Commission after the high-powered recommendation committee proposed his name. And the selection panel, जिन्होंने सिलेक्शन की है इनकी, it is a Prime Minister नरेंद्र मोदी, Home Minister अमित शाह, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। इन सब के हेल्प से ये पर्सन का नेम एम्पावर किया गया, प्रपोज किया गया। Former Chief Justice of Jammu Kashmir High Court and Mahesh Mittal Kumar and the former Director of Intelligence Bureau Rajiv Jain had also been recommended by the High Power Panel as a member of National Human Rights Commission, but official notification is yet to be out until the filling of this report. And a National Human Rights Commission की formation date है 12th of October 1993, jurisdiction Government of India, headquarter New Delhi. Okay, तो A.K. मिश्रा, अमित कुमार मिश्रा, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट है डीबीएस। डीबीएस ने टॉप किया है वर्ल्ड बेस्ट बैंक इंडिया के लिस्ट में। ओके, सो डीबीएस बैंक हैज बीन नेम्ड by the Forbes in their list of world best bank 2021, and DBS was ranked 1 out of 30 domestic as well as the international bank in India for the second consecutive year. And this is the third edition of world best bank list by the Forbes and conducted in the partnership with the market research firm Statista. And there are 43,000 banking customers across the globe were surveyed on their current and former banking relationship. तो ये था सेकंड करंट अफेयर कि वर्ल्ड बेस्ट बैंक इंडिया की लिस्ट में डीबीएस ने कंसेक्यूटिवली सेकंड ईयर में भी टॉप किया है। फर्स्ट ए.के. मिश्रा, ही बिकेम द हेड ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट है एल सल्वाडोर। दिस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। तो ये पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। So El Salvador has become the first country in the world to grant legal tender status to Bitcoin. Okay, and the use of Bitcoin as a legal tender will become law in 90 days. El Salvador economy heavily relies on remittance. Remittance होता है जो फॉरेन से पैसा आता है, दूसरे कंट्री से पैसा आता है, वर्कर्स, लेबर्स, ठीक है, जाकर वहाँ पर काम करते हैं और पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं। सो दे आर वर्किंग अब्रॉड कैन सेंड मनी बैक इन द टर्म ऑफ बिटकॉइंस. And use of Bitcoin will be totally optional. It will bring financial inclusion, investment, tourism, innovation, economic development to the country. El Salvador की कैपिटल है सैन सल्वाडोर, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और प्रेसिडेंट का नाम है नाइब बुकेले। ओके, El Salvador। नेक्स्ट है इंडो एंड थाई, दैट इज इंडिया थाईलैंड की कंबाइन एक्सरसाइज जिसका नाम है कॉर्पेट। सो इंडो थाई कॉर्पेट बिगिंस इन अंडमान सी. The 31st edition of India-Thailand Coordinated Patrol, which is called the Indo-Thai Corpet, kicked off on June 9, 2021 in the Andaman Sea. The 3-day coordinated patrol between the Indian Navy and the Royal Thai Navy, that is Thailand, being conducted from 9 to 11 June. And from the Indian side, then indigenous built a naval offshore patrol vessel, Indian naval ship Saru, is participating from the Thailand Navy HTMS Krabi. Okay, and this exercise is being conducted between the two navies biannually since 2020 2005. हर 2 साल के बाद 2005 से स्टार्ट हुई है. And corporate build up understanding and interoperability between navies and develop measure to prevent and suppress unlawful activities like illegal, unreported, unregulated fishing,
ड्रग ट्रैफिकिंग, मैरीटाइम टेररिज्म एंड आर्म्ड रॉबरी एंड पायरेसी। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। थाईलैंड की कैपिटल आप सबको पता होनी चाहिए बैंकॉक, और उसकी करेंसी है थाई बट। ओके, बैंकॉक एंड थाई बट इज द करेंसी, कैपिटल एंड करेंसी रिस्पेक्टिवली। सो इंडियन थाईलैंड। नेक्स्ट है इकोसॉक, दैट इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी, इकोनॉमिक एंड social council. So India elected as a member of a United Nation Economic and Social Council, one of the 6 main organ of United Nation. Okay, United Nation के जो 6 organ है उसमें से एक main organ है, for 3-year terms from 2020 to 2024. तो इंडिया 3 साल के लिए 2022 से लेकर 2024 तक, ठीक है, इंडिया बन गई है 3 years term. Okay, and India was elected to the 54 member ECOSOC by UNGA on 7 June 2021. Is the Asia Pacific strategy state category along with Afghanistan, Kazakhstan and Oman. Clear? And ECOSOC headquarter है न्यूयॉर्क एंड जिनेवा में। फाउंडेशन 26 1945 और प्रेसिडेंट का नाम है ओह जून। क्लियर? You know, ECOSOC, that is the Economic and Social Council, serve as a central platform for discussing international economic, social and environmental issue, formulating policy recommendation addressed to member state and United Nation system. Next है हमारे इंडिया के सुनील छेत्री, he surpasses Argentina Lionel Messi as far as the active goal scorer is concerned. So Sunil Shetty surpasses Argentina Lionel Messi and he has become the second highest active international goal scorer with 74 strikes. तो ये सुनील छेत्री हैं और ये अर्जेंटीना के लायन मेसी. He made this record in the joint preliminary qualifying round match for 2022 FIFA World Cup and 2023 AFC Asian Cup, and he's currently behind only the Portugal Cristiano Ronaldo, which is 103 in the active international goal scorer list. So Chetri is helped Indian register the is a win with the 6 years in the World Cup qualified. तो इसका जो पॉपुलरली कहा जाता है वो कैप्टन फैंटास्टिक कहा जाता है. ठीक है, इज कॉल्ड द कैप्टन फैंटास्टिक सुनील छेत्री. जिम्बाब्वे की जो नॉवलिस्ट है जिसका नाम है शिश्ती देग्रम्बा विंस अ पेन पिंटर प्राइज 2021. ठीक है, शिश्ती देग्रम्बा. तो शिश्ती देग्रम्बा द बुक शॉर्ट लिस्ट जिम्बाब्वे. तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे. So Shisti Degramba, the book shortlisted a Zimbabwean writer who was arrested last year in Harare while protesting against corruption and has been awarded the Pen Pinter Prize. So इनका जो book है that prays to her ability to capture and communicate vital truth even amidst time of upheaval. And Degramba was also shortlisted for the 2020 Booker Prize for her work The Mournable Body. The Pen Pinter Prize, which was established in 2009, okay, with the memory of the Nobel laureate playwright Harold Pinter. Clear? तो एक तो पता होना चाहिए जिम्बाब्वे की नॉवलिस्ट है शिश्ती देग्रम्बा एंड पेन पिंटर प्राइज एंड ओके एंड हरारे इज द कैपिटल. नेक्स्ट है पंजाब टॉप परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन के ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब ने क्या किया, टॉप किया पूरे इंडिया में. सो पंजाब विच हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स शोइंग फ्रॉम अ 13th पोजीशन इट अटेन्ड इन 2018-19, टॉप द चार्ट दिस टाइम अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद अ स्कोर ऑफ 929 आउट ऑफ 1000. सेकेंड में है चंडीगढ़ और थर्ड में तमिलनाडु. The performance grading index ranked the state on the set of 70 parameters relating to learning outcomes and quality, access, infrastructure, facilities, equity and governance, and process to catalyze transformational change in the field of school education. तो पंजाब के सीएम का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर का नाम है वीपी बदनौर. क्लियर? तो स्कूल ग्रेडिंग एजुकेशन सिस्टम में पंजाब टॉप किया. नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशियन डे. देखिए वर्ल्ड ओशियन डे एवरी ईयर 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन इन आवर लाइफ एंड वे थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट इट. ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून. अब इस साल का आपने एक तो थीम याद रखना है, दैट इज अ
The ocean, life and livelihood is the theme of the World Ocean Day 2021. एंड यू नो हमारे वर्ल्ड हमारे इंडिया में और रदर वर्ल्ड में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, 2015 से 2013 के लिए गोल्स है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखा गया था और इसमें 17 गोल्स हैं। और इसमें जो गोल नंबर 14 है, तो गोल नंबर 14 में क्या आता है? कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ ओशन, सी एंड मैरीन रिसोर्सेज बाय 2030। तो इसमें भी ओशन का रोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 से 2030, और जो उसका SDG 14 दैट इज कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन, सी एंड ओशन, सी एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज। इंडिया स्लिप्स टू सपोर्ट्स ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए SDGs तो आपके हैं, तो SDGs की बात करें तो SDGs में आपके कितने SDGs मैंने आपको बताया 17 SDGs है। इसमें कौन काम करता है? नीति आयोग काम करती है। कौन काम करता है? नीति आयोग। सो इंडिया रैंक हैज स्लिप्ड बाय 2 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर टू 117। तो पहले इंडिया का रैंक 115 था आउट ऑफ 193 यूनाइटेड नेशन कंट्रीज। अब इंडिया का रैंक है 117। सो इंडिया रैंक हैज स्लिप्ड बाय 2 प्लेसेस फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड इवन इंडिया रैंक बिलो 4 साउथ एशियन कंट्रीज लाइक भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। इससे भी नीचे रैंक आता है हमारा इंडिया का, ठीक है। और मैंने आपको बता दी इस पे कौन काम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इंडिया के बिहाफ पे नीति आयोग काम करती है। द स्टेट ओके, तो स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमारा SDG 2, SDG 5 और SDG 9 इस पर काम सही तरह नहीं हुआ, जिससे हमारा रैंक 115 से कहाँ पर शिफ्ट हो गया? 117 पे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बुकर 2021। जैसे भी हमने बात की है, शिष्टी नेगरम्बा जिन्होंने पेन पिंटर प्राइज जीता है। तो डेविड डायोप हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रेंच नॉवलिस्ट हु विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन, फिक्शन विच इज नॉट ट्रू। फिक्शन का मतलब होता है नॉट ट्रू। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, इनकी जो नॉवल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक is the first novel translated to English. And David Diop, the author of 2 novels, is a translator. Anna Moshkevich split 50,000 annual prize which goes to best author and translator for the translated into English. The International Booker Prize, formerly known as the Man Booker Prize, ठीक है, पहले इसको Man Booker Prize कहा जाता था, has been awarded since 2005. It was won by Albanian writer Ismail Kadare. And it is a sister prize of the Booker Prize awarded to the novel written in the English. तो बस आपको याद रखना है कि मैन बुकर प्राइज का जो एक ट्रांसलेटर है दैट इज अ इंटरनेशनल बुकर वॉन बाय डेविड डायोप। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देखिए आप सबको पता बहुत ही ईजी है, 5 जून को एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड टू रिमाइंड पीपल नॉट टू टेक नेचर फॉर ग्रांटेड। और इस साल का जो थीम है, हमें तो सिर्फ थीम पे फोकस रखना होता है डे के याद साथ साथ, दैट इज RRR, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। एंड पाकिस्तान इज द ग्लोबल होस्ट फॉर द डे फॉर हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन दिस ईयर, ठीक है। तो ये था हमारा 11th पार्ट। फर्स्ट हमारा है AK मिश्रा हेड NHRC, सेकंड DBS टॉप बैंक, EL Salvador लीगल टेंडर, बिटकॉइंस, इंडोथाई कॉर्पेट, इकोसॉक जिसमें इंडिया मेंबर बन गई 3 साल के लिए, सुनील छेत्री सरपासिस लायन मेसी, एंड पंजाब परफॉर्मेंस टॉप इन एजुकेशन ग्रेडिंग इंडेक्स, ओशियन डे 8 जून, and India rank 117 as sustainable development goals, and David Dopp International Booker Prize for the English for the French novelist translation, and the book is all novelist all night at night all blood is black.
and the last is 5th June, and the theme is reimagine, recreate and restore. Okay, so hope I answer this. Hope you all like this video. Kindly share my channel, like all videos. Okay, so this is for today in this video. Thank you and take care.